Hello students, once again you are most welcome in this chapter, the thief's story. Here myself Devesh Singh, and I'm going to proceed this chapter. This is the fourth part of this chapter. Now let's see. You can judge to see this picture, students, here, that how the owner of the house, means the man Anil, is sleeping very properly, and this man who is sliding his hand under the mattress, this man is the thief, Hari Singh. He is trying to steal the bundle of notes which was kept under the mattress by Anil, and he was sleeping just over it. Now let's see. When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. Now, as in the last video, I have told you that the thief finally stole the money and he left the house. Now, he moved directly to the station, and he didn't waited for the ticket at the ticket office, as I had never bought a ticket in my life. क्यों? क्योंकि कभी उसने अपनी लाइफ में टिकट तो ख़रीदा नहीं था, वही थिप था, हैबिचुअल था, वहाँ से भी वो निकल पड़ता, तो कभी वो टिकट ऑफिस पे गया नहीं क्योंकि उसने कभी टिकट ख़रीदा नहीं था. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. डैश में उसके बाद छूना, लेकिन सीधे कहाँ पहुँचा है? प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे ट्रेन आके स्टॉप करती है. द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग अप, एंड he saw that the Lucknow Express was just moving out from the platform, and he had to get in this express. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. Now the thief says that by and by the train was picking up its speed, and to enter in a train carriage he has to jump inside one of the carriage. But I hesitated. तो ट्रेन अब स्पीड पकड़ रही थी और ट्रेन में एंट्री करने के लिए इनको जो है जंप करना था, वहाँ पे जंप करके ही किसी भी कैरेज में एंट्री कर सकते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन ही हेसिटेटेड. वो हिचकिचाना शुरू कर दिया फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. और अचानक उसके मन में कुछ ऐसे ख्यालात आया जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. वो उसके मन में हेसिटेशन उत्पन्न होने लगा. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अप. और फिर उस ट्रेन से वो निकल नहीं पाया. सामने से ट्रेन निकल गई और वो वहीं पे खड़ा रह गया. नाउ व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन निकल गई, आई फाउंड माई सेल्फ standing alone on the deserted platform. Now he is looking very stunned at that time, and he was thinking very deeply. The train moved the train had left the station just before him, and he was standing there alone on the deserted platform. Deserted means प्लेटफॉर्म अब सुनसान हो गया था, क्योंकि जाने वाली ट्रेन से चले गए थे, उतरने वाली ट्रेन से निकल के चले गए थे. सो द प्लेटफॉर्म वॉज नाउ deserted. There was no people there. Only this boy Hari Singh was standing there. I had no idea where to spend the night. अब ट्रेन भी निकल गई. अब ये परेशान है कि ट्रेन तो निकल गई, अब मैं रात कहाँ बिताऊँ, इस रात को मैं कहाँ बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड. कोई वहाँ पे उसका फ्रेंड भी नहीं था. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. और ऐसा उसको विश्वास था कि जो फ्रेंड होते हैं हेल्प से अधिक परेशानी का कारण बन जाते हैं, इसलिए किसी फ्रेंड के बारे में वो सोचा भी नहीं.
and I didn't want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. और स्टेशन के पास जो भी छोटे होटल्स थे वहाँ पर भी रुकने के लिए कोई उसके अंदर उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि देयर इट रिक्वायर्स मनी एंड ही डिडंट वांट टू एक्सपेंस मनी ओवर इट. The only person I knew really well was the man I had robbed, and in that city everyone was unknown for the boy Hari Singh, and only a familiar man was Anil, but he was robbed by him. So how he again returned there. Leaving the station, I walked slowly through the बाजार. अब स्टेशन से वो निकल गया और धीरे धीरे बाज़ार की तरफ वो बढ़ना शुरू किया. मतलब कि हरी सिंह जो है फाइनली स्टेशन छोड़ दिया और स्टेशन छोड़ करके अब वापस वो बाज़ार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज एक्सट्रीमली अपसेट टू टेक his own problem, and he began to think about the man Anil, that how much he had helped him, how much he was dedicated to him, and how much he had trusted over him. Everything he began to remember at that time. So he left the station and again he moved towards the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. बता रहा है थिप कि in his short career as a thief, as he was not very aged man, so his career was also not very long. So in his short career he had made a study of men's faces. उसने मैन के फेसेस को स्टडी करना शुरू किया था. when they had lost their goods, जब लोग अपना सामान खो देते हैं, चोरी हो जाती है या उनका सामान उनसे अलग हो जाता है, खो जाता है, तो कैसे उनका माइंड, उनका फेस, उनकी अपीयरेंस क्या रहती है, उनकी फीलिंग क्या रहती है, इस चीज़ को थिप ने रीड किया था. द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर. ऐसा उसका एक अपना एक्सपेक्टेशन था, एक ओपिनियन था कि जिस व्यक्ति की सामान चोरी हो जाती है, खो जाती है, तो अलग अलग लोगों के प्रति उसने एक अलग अलग एक आइडिया निकाला था कि जो ग्रेडी मैन होते हैं वो भयभीत होते हैं, शोड फियर, वो डर शो करते हैं, लालच वश वो फियरफुल हो जाते हैं. एंड द रिच मैन शोड एंगर, जो काफ़ी रिच लोग होते हैं वो काफ़ी नाराज़गी शो करते हैं, गुस्से में और आते हैं. द पुअर मैन शोड एक्सपेक्टेंट, और जो गरीब लोग होते हैं वो इसे एक अपना भाग्य समझ करके उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं. और बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन जब अनिल के फेस को अब याद किया तो व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा तो वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसे कोई ना नाराज़गी प्रकट करेगा, ना कुछ और प्रकट करेगा, ना फियर प्रकट करेगा. एट दैट टाइम ही विल ओनली शो अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ और सिर्फ वो दुखी होगा, अपना दुख प्रकट करेगा. क्यों? बिकॉज ही हैड ट्रस्टेड टू मच ओवर दिस unknown man Hari Singh, not for the loss of money but for the loss of trust. और उस चीज़ को यहाँ पे स्थित ने भी मेंशन किया है कि पैसे के खो जाने का वो दुख नहीं प्रकट करेगा, बल्कि विश्वास जो उसका टूटा, उसका विश्वास जो इस चोर ने तोड़ा, इस बात को लेकर के वो काफ़ी दुखित महसूस होगा, वो काफ़ी परेशान महसूस होगा. इस चीज़ को
इस चीज़ को थीफ ने वहाँ पे सोचा कि द मैन विल थिंक अबाउट इट दैट हाउ रॉन्ग पर्सन द थीफ इज, हाउ मच a bad person the thief is who has broken his trust. Now I found myself in the Maidan and sat down on a bench. अब जो है थिफ आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़े से मैदान में एक फील्ड के नज़दीक पहुंचा और उसमें एक बेंच लगी हुई थी। उसी बेंच पर आकर के वो बैठ गया। द नाइट वाज चिली, वो रात जो थी वो काफ़ी चिली रात थी। इट वाज नियरली नवंबर और इट वाज सो चिली, इट वाज सो कोल्ड because this was the month of November, and in the month of November you know that it is the time of cold winter, and a light drizzle added to my discomfort. और वहाँ एक लाइट, एक प्रकाश जो था, एक रोशनी जगमगा रही थी, और जब रोशनी उसके सामने आ रही थी, उसके सामने रोशनी जो पड़ी हुई थी, इट वाज रेजिंग डिस्कम्फोर्ट फॉर हिम, उसके लिए बेचैनी पैदा कर रही थी। उस प्रकाश को देखकर वो काफ़ी बेचैन हो रहा था और डिस्टर्ब महसूस कर रहा था। Soon it was raining quite heavily, and very soon it was raining heavily. वर्षा वहाँ पे जोर से शुरू हो गया। My shirt and pajamas stuck to my skin, and when the rain started very heavily. Now the thief was wet fully, and so his dress was stuck to his skin, अर्थात अब भीग करके जो उसका ड्रेस था वो बिल्कुल उसकी बॉडी में चिपक गई थी। And a cold wind blew the rain across my face. और कोल्ड विंड मीन्स ठंडी का समय था, बारिश हो रही थी, तो जो विंड था वो भी काफ़ी ठंडा था, ठंडा हवा बह रही थी। रेन अक्रॉस माई फेस, उसके फेस के ऊपर तेज़ी से ठंडा हवा का झोंका आके पड़ रहा था। सो नेचर वॉज आल्सो अगेंस्ट हिम एंड ही हैड नो प्लेस वेयर ही कुड स्टेड एट दैट टाइम। सो इन द ओपन फील्ड ही वॉज सिटिंग देयर in discomfort, and he is looking extremely upset at that time because there was no familiar person to him where he could spend the night, and we can also say that he is also realizing extremely sorrow about his deeds, that he had done very wrong, very bad with a trustful man Anil. So students, we can understand here that how a bad deeds change the mind of a bad man, means who is a thief here, and very soon you will find a twist in this story, and you will get it in another video. Okay, goodbye everyone, have a nice day.